हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम एसएससी का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जिसका नाम है उत्कर्ष। और ये यार स्टार्ट हो गया था वही कुछ सेकंड पहले गलती से। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो पहले जीएस वाला सेक्शन देखते हैं। In 1818 the Holkar dynasty signed the treaty of, पता नहीं, which which of the following pair of term sport is not correct? बैटिंग क्रिकेट तो सही है। गोल नेट बॉल। नेट बॉल जब खेलते हैं अपन उसमें गोल होता है, मेरे ख्याल से स्कोर होता है। Rathawani Gher is a dance performed by Rathawar tribe of Gujarat। में भी जन्माष्टमी हो सकता है, गुजरात का ऐसा पिता और दशहरा पे हो सकता है। तो जन्माष्टमी लगा देते हैं। Which pass connects the Kullu Valley with Lahore Spiti? No party or candidate can use any place of worship for the election propaganda. No party or candidate can use government vehicle. Pradhan Mantri Awas Yojana, a flagship mission of Government of India being implemented by which ministry? आवास योजना जो है हाउसिंग एंड एफएसडी, अफेयर्स नहीं है, रूरल डेवलपमेंट। आवास योजना हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही होगा। हार्डवुड trees like sal, teak, and neem and shisham are found in which type of forest? At which of the following places did C. Rajagopalachari break the salt law? In the year 1930. Identify the correct relation between radius of curvature when Indian state unveiled India's first glass sea bridge connecting the, अरे भाई क्या है ये सब? Which revenue system among the following was known as the Bandobast system? Resistivity of a material is dependent on the nature of the material, is independent of the area of cross section। ये तो गलत है, दोनों पे डिपेंड करेगी मेरे ख्याल से। Resistivity of pure metal is more than its alloy। Resistivity of pure metal is more than its alloy। ये नहीं पता है, करेक्ट पूछ रहा था। ए तो करेक्ट है, बी तो गलत है। बी गलत है अगर तो ए करेक्ट है, यही होगा शायद फिर। A type of unemployment in rural areas when people are not able to find job during some months। some months है तो फिर वो सीजनल है। थोलू बोमालाता, ये शेडो साउथ में ही है, नाम से तो पता चल रहा है। कर्नाटक और केरला के बीच में लग रहा है, बस पर श्योर नहीं हूँ। The result of English Education Act of 1835 was to make dash as a medium of instruction for dash education। The result of English Education Act of 1835 was to make dash English as a medium of instruction for primary education। Okay. Which one of the following tributary river is not correctly mentioned? ये बता। Which satellite is ISRO set to launch to enable direct smartphone voice calls from space? Which satellite is ISRO set to launch to enable direct smartphone voice calls from space? अरे वाह। Establishment of the high courts at all presidencies होता है, what treaty? Tawa River, which is the tributary of River Dash, is located Tawa Reservoir। The three-language formula of education policy was recommended by three-language formula of education। इन्होंने में से है शायद या भी से। The Sesa Orchard Sanctuary is located in which of the following? Which musician won the Album of the Year at the Grammy 2025?
In which of the following decades there was a negative growth rate in India? Which of the following statement is true about the religious practices of the Harappan people? They worshipped in temples, they were a class of priests whom temple had been erected. They worshipped animal gods. Windmill were electrified. विंडमिल होता है काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, A2 है, A2 दो जगह है, ठीक है, तो B4 है या 3 है? बल्ब है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट है बल्ब, B4। ठीक। चलो इंग्लिश पे आते हैं। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन। इट इज टू कन्वे to all the residents by now that they are required to apply for parking status. It is to convey, it is to convey होना चाहिए या तो अगर it is to convey नहीं है तो it has been conveyed to all the residents by now। हाँ तो ये हो सकता है that they are required। It is conveyed to all by now नहीं होगा, it will be conveyed by now नहीं होगा। Have they announced the World Cup cricket team? Have they World Cup cricket team? Has the World Cup cricket team been announced? ठीक है, has the World Cup cricket team been here? One who helps a person in need, Samaritan जो अच्छा काम करे। Supriya asked Kiran that where had her mother gone when the results of the contest were being declared? Where had her mother नहीं, where her mother had gone होना चाहिए, क्योंकि इधर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। प्रूडेंट मतलब समझदार, इसका ऑपोजिट जीडीसी प्रैक्टिकल टेक्स्ट मतलब समझदारी होता है, इंडिस्क्रीट होगा अगर आप एंटोनिम। करेक्टली स्पेल टी यू आई लगती है, TUTION नहीं होता ये जो बी में लिखा है। अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वो बी लगा देगा। The sailors had never encountered such a rough sea. Such a rough sea had never been है, हैज नहीं, हैड ही आएगा, हैड का है। सून पहला ये तो ये स्टार्ट हो ही नहीं सकता। सी व्हेन द फायर ड्राइड आउट, सी से भी नहीं हो सकता, बी ही है। मैन एंड वुमेन होल्डिंग टॉर्चेस aloft raced up and down the palace terraces. When the fire died out, all that remained of the magnificent palace were the stone columns. Soon flames ignited the wooden beams of the grand palace built by Xerxes. Looters fought off, तो BACD होना चाहिए, BADC, to drag out gold and silver when the fire died out। ठीक, चलो। रेपिडिएट, ये ध्यान नहीं आ रहा, रिग्रेट करना होता है, रिनाउंस करना होता है, रिनाउंस ही होता है शायद, एनफोर्स सैंक्शन में। करेक्टली स्पेल्ड CULAR होना चाहिए पहली बात तो पी है होता है। नियर मतलब कमी, इसका ऑपोजिट लेंटिफल। She got a lucrative मतलब profitable job of a translator because she was dash in French. She got a lucrative job of a translator because proficient ही होगी तभी तो उसको जॉब मिली है उस चीज में। The owner of the house was dash indignant मतलब गुस्सा कि अगर आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिली। Was dash at the watchman for letting in a stranger। इंटेलिजेंट नहीं, इंडिफरेंट नहीं, इम्पेशेंट। इंडिग्नेंट ही है गुस्सा, कोई चीज गलत होती है तो उसके प्रति जब आप गुस्सा होते हो तो इंडिग्नेंट होता है वो। चार्ली चैपलिन्स rise to fame paralleled the dash paralleled the dash growth of Hollywood movies in the such case। Rise to fame paralleled the explosive growth of Hollywood movies या progressive growth of। प्रोग्रेसिव बोलेंगे sluggish और negative से नहीं, explosive paralleled the explosive growth of। प्रोग्रेसिंग लगाते हैं,
करेक्टली स्पेल्ड, लग्जरी की सही है स्पेलिंग, यू यू आता है। इट वॉज व्हाट वॉज, तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, डी से स्टार्ट है। मिस्टर ऑलिवर द स्कूल टीचर सॉ अ लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक वीपिंग साउंडलेसली। ठीक है, अगर डी के बाद ए लगा के देखें। इट वॉज वेरी अनयूजुअल एज बॉयज वर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ। ठीक है, ये तो सही सेट हो गया, ए के बाद डी के बाद है। क्या बी, ही मूव क्लोजर to the boy in anger so that he could recognize the miscreant and punish him. He felt angry as teachers ought to be school rules. He felt angry as teachers ought to be about school rules being broken. Mr. Oliver, the school teacher, saw Lully was sitting on a rock weeping harmlessly. He moved closer to the boy. नहीं, यही आना चाहिए, ए आएगा। he moved closer, punishing, ठीक है। पार्सिमोनियस मतलब कंजूस, इसका एंटोनिम मतलब, इसके एंटी मतलब कंजूस, इसका भी मतलब कंजूस। स्पैरिंग और प्रोफ्यूज, स्पैरिंग भी कंफ्यूज ही होता। प्रोग्रेसिव का एंटोनिम प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव आगे की तरफ, इसका मतलब पीछे। नेगेटिव कंजर्वेटिव, रिपीटेड मूविंग एरिस्टोक्रेटिक से नहीं, वो कंजर्वेटिव ही है, चलो। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश राउट देन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रेवलर chose to follow. It is hard to conceive of a more dash route than the one that this determined traveler chose to follow. It is hard to conceive of a more stimulating, dashing, daunting, provoking, provoking route नहीं हो सकता। daunting, daunting क्या होता है, नेगेटिव वर्ड ही है। stimulating route, stimulating हार्ड नहीं होगा, अगर stimulating था तो नेगेटिव, डैशिंग भी नहीं, daunting ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो, Portia claims that even if she dashed to live as long as Sibylla, she would, even if she were to live as long, ठीक है, she would die as, she would die as plain या pure as Diana because she can only pure, क्योंकि claim की बात आ गई, she can only be claimed dash the manner specified by her father's will. She can only be claimed through the manner father's will. She dash that nobody would be able to crack. She was worried, अच्छा was worried नहीं है, she worries, worries आएगा, worry तो आएगा नहीं, she has worry नहीं आएगा, will worry नहीं आएगा। she worried that nobody would be able to crack the casket tests and so she was bound to remain unmarried. ये जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, शेक्सपियर की उसमें से आया है। अगर आप सीबीएसई से पढ़े हो तो उधर पे ये पढ़ाते हैं 10th में। How many four letters meaningful words can be made by third, fifth and sixth? ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। टी एफ टी एफ ई टी, ये थोड़ी कुछ होता है। पी टी एफ, टी एफ टी, एफ ई टी नन ही है मेरे ख्याल से, तो क्या मीनिंगफुल बनता है इसमें। इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, अगर इसका इसका ऐसा तो नहीं है, टी का +1 तो एस में +1 टी हो जाएगा, ठीक है। 8 में +1, 15 में +1 टी। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। असिस्टेंट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। क्या बोल रहा है, स्मॉल टू बिग, तो हेड कांस्टेबल पहले आएंगे। 5, 5 के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा पहले। लो तो ये तो यही हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आ जाएगा, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ठीक है। 7 गर्ल्स हैं, ये थोड़ा सा लंबी हो सकता है, इसको छोड़ दो फिलहाल। हम्म, इधर पे मैंने 4 जोड़ा, 17 मतलब 6 और 3, 9 जोड़ा। इधर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, लो हो गया 5 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दो 87। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 3 5, एक सेकेंड, 2 3 5 6 नहीं, 2 3 5 7 होगा। 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स पे खोल लेंगे, 7 का ये 100 होगा फिर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा कि अगर 7 का होगा तो 76 से 49 जोड़ के ये थोड़ी बनेगा। 7 है तो 11, 121 जोड़ोगे 100 में तो 221 मिल जाएगा। सही है, चलो। विल नॉट बी विच ऑफ द, देखो पहली बात तो के ऑपोजिट ये है एम के पी और एन के ओ। ठीक है, एक एक छोड़ के होता है। विच ऑफ द which pair of the letters will not be on the opposite faces when the given sheet is folded to form a cube? एल और ओ क्या ऑपोजिट नहीं है? एम पी, हाँ सही बात है। एम पी है, के एल है, एन ओ है। वो पूछ रहा था कौन सा ऑपोजिट नहीं होने वाला। कृतिका is 50 from the left and Veena is 40 from the right. When they interchange their position respectively, then Veena becomes 60 from the right end. देखो, कृतिका जो है 15 फ्रॉम लेफ्ट है, जो वीना है 14 फ्रॉम राइट है। अब जब इनने पोजीशन चेंज करी तो जो वीना है वो 21 फ्रॉम राइट हो गई। ये राइट से ही राइट थी। 14 में कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। इसमें कितना जोड़ेंगे? 7 ही जोड़ेंगे, बन जाएगा 22। लेफ्ट से ही बनेगा 22। ठीक है, ये ट्रिक होती है। अगर पूछ ले इसके बीच में कितने लोग हैं तो तुमने क्या किया था? 7 जोड़ा था ना, तो 7 - 1 कर दोगे तो 6 लोग होंगे इन लोगों के बीच में। और अगर टोटल करने को बोल देगा कि कितने लोग टोटल है तो दिस प्लस दिस -1। ठीक है, कृतिका का स्टार्टिंग का ओरिजिनल और वीना का लास्ट दूसरी वाली पोजीशन। The sum of 5 consecutive multiples of 7 is this। अगर 7 के मल्टीपल्स हैं तो पहले तो 7 कॉमन आ रहा होगा। What is the largest number? The sum of 5 consecutive, अगर ऐसा है तो एक x है तो दूसरा हो सकता है x -1 x +1 x +2। ठीक है, इसे 6 हो रहे हैं ना, पर 1 2 3 4 5 नहीं सही हो रहा। x है, x -1 है +1 है, x +2 है, x -2 है, 1 2 3 4 5। सही है, चलो। इनका जो सम है, जो कि क्या बनेगा 7 × 5x ही बनेगा, उसका जो आ रहा है 455 आ रहा है। 5 ने इसको काटा 91 टाइम, 7 इसको कितने बार काट देगा? 13 बार काट देगा। फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज? 13 + 2 हो जाएगा 15 × 7 हो जाएगा 105। ठीक है, सी का जी से रिलेशन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सी इज द सिस्टर ऑफ जी, सॉरी डी। सी इज द सिस्टर ऑफ डी। डी इज द सन ऑफ ई, और ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ। एफ इज द मदर ऑफ जी। ठीक है, तो हाउ इज सी रिलेटेड? सी जो है बहन हो गई, सिस्टर हो गई जी की। सॉरी, ये सी नहीं है, लास्ट में जी था। हम्म, इसमें क्या सीन है? छोड़ेंगे ऐसे, छोड़ो अभी। इधर क्या है? +1 किया। इधर क्या है? +8 किया। इधर क्या है? +70। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। इधर कितना जोड़ा? 2 में जोड़ा 4, 5 में जोड़ा 6। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। फिर यही इधर लाइन नहीं करना चाहिए। 5 का क्यूब तो 125 होगा और यूनिट डिजिट 1 देगा, तो 243 तो नहीं देने वाला है। A is married to Z, Z has 3 children, L, M and N। ठीक है, ए और जेड की मैरिज है, और इन दोनों के जो बच्चे हैं वो 3 हैं। कौन कौन है? एल एम एन है। जेंडर नहीं पता अभी, 5 में से किसी का। जेड इज नॉट द फादर, तो जेड मदर होंगी, ये फादर होंगे। पी इज द मदर ऑफ ए। पी इज द मदर ऑफ ए। एल इज द हस्बैंड ऑफ डी। एल इज द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, एम हैज 2 daughters। एम की जो है 2 डॉटर हैं, एच और जे।
हाउ इज जेड हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी? अरे यार ये सब तो करने की जरूरत नहीं थी। जेड पी से कैसे रिलेटेड है? डॉटर इन लॉ है। Some doctors are tigers or tiger relation are umbrellas. Some umbrellas are वसी बाकी किसी का नहीं। Some doctors are umbrellas. क्या डॉक्टर कहाँ है? ये है टाइगर। टाइगर अम्ब्रेलाज होंगे, ठीक है, फर्स्ट सही है। टाइगर्स आर अम्ब्रेलाज। टाइगर्स आर अम्ब्रेलाज फिर से सही हो गया। बसेज आर अम्ब्रेलाज। बसेज आर अम्ब्रेलाज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक की स्टडी है। टेक्सोनॉमी टेक्स की है क्या? हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस की नहीं है। फिजियोलॉजी फिजिक्स की नहीं है। हेमेटोलॉजी हाइड्रोजन की नहीं है। तो टेक्सोनॉमी टैक्सेशन की है। हेमेटोलॉजी हाइड्रोजन की नहीं है। हर्पेटोलॉजी, ये हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस की होती है। टैक्सेशन गलत है ये साहब, ये सही है। टेक्सोनॉमी तो नाम देने का होता है, टैक्सेशन में क्या रिलेशन है उसका? ठीक है, पहली बात तो सेकंड जगह पे नाउन आना चाहिए था, ये भी एक बात है। ठीक। प्लस के बदले अगर डिवाइड हो गया तो ये माइनस, ये सिक्स, और डिवाइड के बदले प्लस लग गया, ये तो नाइन है। ये कितना है? माइनस तीन छः दे रहा है क्या? तो ये तो सही है, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, इंपॉर्टेंट बात। प्लस के बदले डिवाइड लगा तो नाइन हो जाएगा, इंटू सिक्स, डिवाइड के बदले प्लस लग जाएगा, ये दे रहा है माइनस का चार। नाइन इंटू सिक्स 54 माइनस फोर, ये भी सही है। ठीक है, सेवन इंटू एट 56, और डिवाइड बाई फोर के बदले लगा प्लस का साइन, प्लस के बदले लगा डिवाइड का साइन, माइनस सिक्स, मतलब ये माइनस चार है। तो ये गलत हो गया इनका। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था। 18 39 60 27 68 69, मुझे दिख रहा है ये तीन का है, ये भी तीन का, ये भी तीन का, ये भी तीन का, ये सभी तीन के हैं मुझे तो मल्टीपल्स। तो अच्छा, तीन से अगर काटा तो गया छह बार, तेरह बार, 20 बार। तो ये मतलब दिस प्लस टू कर दें क्या? नहीं, प्लस तीन करना पड़ेगा। दिस प्लस दिस किया, आठ सात 15, छः सात 9, और आठ इस सात चार, इधर पे से सेट नहीं हो रहा। तीन से काटा तो छह बार, तेरह बार, और 20 बार। काटने के बाद इन दोनों को प्लस करके प्लस वन करके ये बना दो, ये 19 है प्लस 20। तीन से काटा 9 बार, 16 बार, 23 बार, इन दोनों को जोड़ा, ये तो फिर ज्यादा हो रहे हैं, 25 हो रहा है। यहाँ पे देख लो, ये तीन से जा रहे हैं क्या सर? नहीं। तीन से जा रहे हैं क्या सर? नहीं। तीन से जा रहे हैं, तीन से जा रहे हैं, नहीं। तो फिर तीन वाला मल्टीपल का कोई रिलेशन नहीं है, छोड़ दो उसे। बेस को लिखा है 27, कलेक्शन को क्या लिखेंगे? ये है दो, ये है एक, ये है 19, ये है पाँच। 19 प्लस एक हो गया 20, ये 27, ठीक है। तो सी है तीन, एक वो हो गया, दो हो गए, मतलब 15 15 30, ये हो गया 33। एल एल 12 12 मतलब 24, ये हो गया 57। इसमें पांच और जोड़ दिया, बन गया 62। सी दो थे यार, एक और तीन जोड़ दिया 65। टी है 20 मतलब 85, इसमें नौ जोड़ा आई का तो 94, और इसमें 14 और जोड़ा 108। तो ये ऐसे है भैया, ये इधर ये इधर, तो ये आपस में चेंज हुए, ठीक। ये भी ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आपस में चेंज, यही चल रही है कहानी। तो यहाँ एरो आ जाएगा, ये इधर ये इधर, इधर सर्कल, इधर ये स्क्वायर। सर्कल स्क्वायर देख लो, फर्स्ट में सेकंड में, क्या ये सेट हो गया क्या? हम्म, चलो ठीक है। जे में प्लस दो, 17 में प्लस दो, तो 6 में प्लस दो 8 बनेगा। के है डब्ल्यू है 21 प्लस दो 23, 21 प्लस दो 23, 21 प्लस दो डब्ल्यू ही आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। थर्ड और देख लो, 13 में प्लस दो 15, 9, ठीक है। 26 दो भी, 26 दो 28, और 20 28। सम ट्रेन आर बसेस, नो बस इज अ कार, बस का रिलेशन, सम कार आर बाइक्स,
कार का रिलेशन। सम बाइक्स आर कार्स, सम बाइक्स आर कार्स सही है, इधर से पता चल गया। सम बाइक्स आर ट्रेन्स, सम बाइक्स ट्रेन्स नहीं हो सकती है, नेगेटिव रिलेशन होता तो फॉलो कर जाता। सम बाइक्स आर कार्स तो था, पर फर्स्ट वाला फॉलो तो कर रहा है। ठीक है, इधर पे 24 - 4 18, -4 14, -4 10, -4 6। लो तो फिर ये तो एक ही बार में हो गया। रवि वॉक्स, इसको भी देखते हैं। ये क्या कह रहा है? अच्छा, कौन सा रोटेटेड, कौन सा एम्बेडेड? क्या ये हो सकता है? नहीं, बीच में लाइन ऐसी नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं, सिर्फ पूरी लाइन ऐसी नहीं है। क्या ये हो सकता है? ऐसा सर नहीं है तो फोर्थ ही होगा फिर। और दिख गया ये रहा। ठीक है, पहली बात तो जे का देख लो, एच का देख लो, 5 ये गलत। ठीक है, ये गलत, ये गलत। एम ऐसा था तो एम तो ऐसा बनेगा ना, पर तो ये गलत। एक सेकंड, ये 5 ऐसा था, ये ऐसे बना। हम्म। टाइम तो चलो आज अच्छा बचा है। 14 × 11 -500 प्लस का 29। 23 से 2 बार 46, 9, 4 बार 10 - 10 मतलब कि प्लस का 5। यह है 154 + 5, ये तो सही हो गया, करेक्ट ही पूछा था क्या? ठीक है। रवि वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न and turns 12 and walks 12. He takes a right turn and walks 10. He takes a left turn and walks 5. He turns to the right and walks 6. He takes a right turn and walks 9. ये 5 मतलब ये 4, ये पूरा 9 चल गया। Finally he takes a right turn and walks 11। 6 ये, और कितना? 5 ये, बचा कितना है? ये 6 और 10, ये 16 था, ये 11 है, तो ये 4, सॉरी 16 11 5, 5 बचा है ये अभी। How far and in which direction is he now from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से भी किस डायरेक्शन में है? पहली बात तो ये साउथ ईस्ट में कह देंगे इसे। ठीक है, साउथ ईस्ट में है। लो, ये तो वैसे ही हो गया फिर। ये तो कोई खास समझ नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं, रुक जाओ, इसको पहले ये देख लो। वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्मण। 7 गर्ल्स हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। ठीक है, बाहर देख रही है, मतलब सेंटर में नहीं देख रही है। ये होगा 7 लोग। ठीक है। आरती सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। अगर काजल ये है तो आरती यहाँ है। सेंटर में इन फेस करता है ना, तब प्रॉब्लम होती है, बाहर वाला तो बढ़िया रहता है, इजी रहता है। मोनिका थर्ड टू द राइट ऑफ काजल। काजल ये है, इसके थर्ड राइट पे 1 2 3, ये है मोनिका। मानसी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ काजल। तो यहाँ पे जो है मानसी नहीं आएगी, यहाँ पे भी मानसी नहीं आएगी। लक्ष्मी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी। तो मानसी यहाँ कहाँ सकती है? यहाँ आ सकती है, तो यहाँ पे लेफ्ट है। अगर यहाँ मानसी आ रही है तो यहाँ भी लक्ष्मी। ठीक है। पायल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी। अरे वाह, तो बढ़िया क्वेश्चन। Aarti is second to the left of Kajal. Aarti is second to the left of Kajal, opposite to the center. Monica is third to the right of Kajal. Kajal से थर्ड इधर पे ये। मानसी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ काजल। अगर मानसी है नहीं बैठी, है नहीं बैठी, चलो एक और बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। आरती है, मोनिका है, काजल है, मानसी इज नॉट। एक बार मान लेते हैं मानसी यहाँ बैठी है, और यहाँ मान लेते हैं चलो मानसी यहाँ बैठी है।
मानसी इज नॉट द इमीडिएट, लक्ष्मी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी। अगर ये मानसी है तो यहाँ पे लक्ष्मी हो गई, ये मानसी थी तो यहाँ लक्ष्मी होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया फिर। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्मी, किसका नाम बचा है? श्वेता का बच्चा है। मानसी, काजल, पायल, आरती। आरती का तो नाम है, मोनिका का है, काजल का है, पायल का नाम बचा है, श्वेता का नाम भी तो है। अच्छा, श्वेता यहीं पे नहीं है तो क्या ही करना है श्वेता, क्या है उससे। ठीक है, 28 मिनट बचे हैं। 321 छोड़ देते हैं, चलो इसे, इस पे आओ। टू वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशियो दिस दिस। ये है 6, ये है 12। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ बोथ दी वेसल्स आर मिक्स्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो इसमें दो का मल्टीप्लाई किया, ये जूस है और वाटर है, दो का मल्टीप्लाई। यह है 5 और 7, इन दोनों को जोड़ के बिगर में डाला तो ये बना 15 और 7 दोनों। ठीक है, वॉट इज द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। 5 1 था, 5 7 था, इक्वल कैपेसिटी है तो इक्वल कैपेसिटी भी देखनी हुई है ना, 5 1 6 है, 5 7 12 है। इधर पे इंटू दो का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 और 9 बना, 3 से काटा, 5 और 3। ठीक है, आउट ऑफ टू concentric सर्कल द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज दिस। आउट ऑफ टू concentric, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल मतलब आउटर सर्कल का रेडियस जो है 26 है, एंड द कॉर्ड एम एन ऑफ द लेंथ 24 इज टेंजेंट टू द स्मॉलर वन। ये हमेशा यही होता है बस, तो मतलब 12 12 हो जाएगा ये पूरा 13 है। अच्छा, मतलब अगर ये पूरा 13 है तो 5 12 13, ये डिस्टेंस जो है वो 5 है, स्मॉलर वाले का रेडियस है 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है ये। टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। ये 1 या 9, इसकी वैल्यू है इतने टाइम्स, मतलब कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जिस सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा, 7 8। इन दोनों का सम किया, 7 बना, 7 इंटू 8। अच्छा सॉरी, ये क्यूब का है ना, तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू है, एक्स आएगा 2, तो 7 इंटू 2 14 बनेगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 36। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, तो एवरेज में भी जो है 4 ही बढ़ जाएगा, 36 से वो 40 हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b such then an 8 digit number this is divisible by 15। ठीक है, अगर ये 15 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 4 हो गया 9, 3 से 3 है ही, 6 तो 6 है ही, तो 2 प्लस ए प्लस बी, ये 3 से जाना चाहिए वैल्यू, मतलब 3 6 9 0 कुछ भी। और फिर 5 की बात है, अब अगर 5 की बात है तो इसका मतलब है कि इधर लास्ट में 0 है, बी जो है, ए बी सॉरी, जो बी है वो 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बी को 0 रख दूं, अगर मैंने बी को 0 रखा, 2 प्लस ए प्लस 0, तो ए को क्या बनना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल रहा है, ए को मैं मैक्स 9 बना, सॉरी 7 बना सकता हूँ, 7 और 2 वो 3 का वो हो रहा है। ठीक है, और अगर मैंने बी को 5 रखा, 5 इसको रख दिया बी को, तो 5 प्लस 2 7, ए को 2 रखना पड़ेगा। ए प्लस बी की वैल्यू तब भी दोनों जगह से, अगर एक बार 0 रखा है ये 7 है, एक बार बी को ये रखा है ये 9 है। ठीक है, तो ये बन रहा है बेस्ट। बी को रख दो 5, 5 2 7, एक को रखेंगे 2। एक सेकंड यार, जब बी को 0 रखा था तो ए को 7 रख रहे हैं। ठीक है, जब बी को 5 रखा, 5 प्लस 2 7, ए को क्या रख दूंगा तब, ए को 2 रखेंगे तब, कुछ तो गलत हो गया।
टू प्लस ए प्लस बी जो है ये होना चाहिए। बी या तो जीरो तक का फाइव हो सकता है, जीरो तक था तो ए को सात रखना पड़ेगा। और अगर बी को फाइव रखा, और अगर बी को फाइव रखा, पाँच से सात ए को छोड़ो से अच्छा। पता नहीं क्या ही बेवकूफ़ी वाली गलती कर दी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है अच्छा। अभी मैं ऐसे देख के तो नहीं बता सकता हूँ, मैंने कैसे पढ़ा है। ये है सी, ये है डी। जो डी होता है वो होता है ए बी बाई सी। ठीक है, मतलब सी डी जो है वो क्या होना चाहिए, ए सी इंटू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यही है, मैंने इसको इस वैल्यू से पढ़ा है। एक्स प्लस वाई अगर वाले तो यार वाई को जीरो रख दो, एक्स वन हो गया। वाई जीरो तो एक्स वन। चलो, रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ एज ऑफ टू ब्रदर्स। ठीक है, मान लिया बी वन बी टू ब्रदर। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम्स इतने आफ्टर 3 इयर्स, अगर तीन तीन जोड़ रहे हैं तो ये 11 और 9 बन रहा है। 9 5 45 और 44 मतलब 11 यूनिट। 9 5 45 और 4 4 44। अरे 11 नहीं, 1 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो दोनों में ऐड हो रहा था तो मतलब 3 इंटू 11 और 9 का डिफरेंस 2। तो एक की वैल्यू है 6। यंगर ब्रदर कौन सा है, 5 और 4 में 4 है, तो 4 इंटू 6 24 हो गया। द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉस प्लस ये सब क्या करें, इसमें भी वैल्यू रख देंगे, थीटा को 45 रख दें। 1 + 1 माइनस साइन 45 क्या होता है, √2 कोसेक होगा ये। और 1 प्लस ये प्लस ये भी माइनस का 1। ये क्या हो गया, 2 माइनस का 2 और 2 प्लस का 2, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 4 - 3 1। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बेटर था ये क्वेश्चन करना। 2 कोसेक स्क्वायर प्लस 4 कोसेक, सॉरी 2 सेक्स प्लस 4 कोसेक माइनस 2 tan माइनस 4 कॉट। इसमें भी एक काम करो, वैल्यू ही रख दो। क्या, थीटा को 45 रख, मतलब ए को 45 रख दो। तो क्या बनेगा, पहली बात तो -2 बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ओके, 2 cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। उसका स्क्वायर कर दो, 2 हो गया। रिवर्स कर दो, 2 हो गया। प्लस में 4, इधर पे भी वही सीन होगा। तो 4 + 8 माइनस का 6, मतलब -2 8 -2 6। 7/16 ये आपका डिवीजन मल्टीप्लाई है तो ठीक है। 11/2, 21/2 इंटू में 5। 5 7 35 प्लस 1 36। 5 7 35 प्लस 1 36, 10 2 20 21। ठीक है, दो इसको काट रहा है 18 बार पे। अब 7/16 इंटू डिवाइड हुआ तो ये हुआ 18 इंटू 21। साथ में इसको काटा 3 बार पे, ये हुआ पूरा 16 इंटू 18 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 से, 5 3 15 प्लस 3 18। तो इस पूरी जगह पे क्या बचा, 1/48। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर है माइनस का 4/3 इंटू 9/8 इंटू 2। मैंने इसको 4 बार काटा, ये इधर पे सिर्फ बचा 3 प्लस का 3/4। इधर पे 12 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 36 प्लस 1 37/48 माइनस का 3। तो यार 8 3 24, 8 इंटू 3 24, 3 4 12 प्लस 2 14। उसमें से माइनस करो 37, तो 14 में से 4 गए, 7 गया 7, 13 में से 3 10, माइनस का 107 आ रहा है न्यूमरेटर में, उतना ही काफी है। चलो, डिनोमिनेटर में तो फिर था ही 48।
Ramesh credited 15% of his salary in his fixed deposit and spent 30% of the remaining amount on getting groceries if he has 80 रुपये in cash. ठीक है, मान लो सैलरी का इतना है, कितना यूज कर दिया? 15, मतलब बचा कितना? 85. 85 का मतलब 17/20. एंड अकाउंट एंड स्पेंड 80% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ग्रोसरीज, तो फिर कितना बचेगा उसके बाद? 7/10 बचेगा. अब इस पे जो कैश है वो ये बचा है. व्हाट इज सैलरी? तो 7 से काटा 3 बार, बचे 2, तो 4 0 बार. 17 से काटा 20 बार, 20 × 20 हुआ 400, × 10 हुआ 4,000. बी प्लस सी अगर ए प्लस एक्स है, सी प्लस ए अगर ये है, ए प्लस बी अगर ये है. अच्छा, 3 इक्वेशन है और ए बी सी एक्स वाई जेड 6 वेरिएबल है. इसमें ना मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है समझ गया. ये देखो, इसको कैसे लिख दो? 1/x इक्वल्स टू a/b+c. ठीक. यार को b+c/a इक्वल्स टू x है. +1 + 1 करो तो ये बन जाएगा +1 करके. ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या आएगा इधर पे? वो आएगा a/a+b+c. y वाले में भी क्या आएगा? वो आएगा b/में a+b+c. ये होगा c प्लस में b प्लस, तो ऊपर से न्यूमरेटर कट गया और बचा क्या? 1/9 ही बचेगा इवेंचुअली. ब्रैकेट के जो अंदर चीज है वो 1 बन जाएगी, क्योंकि हाउ मच विल द प्रिंसिपल अमाउंट टू 1 lakh ग्रो इन 3 years at 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली. देखो, 3 है और ये है इतना, तो 33.1 इंटरेस्ट होता है, अगर पढ़ लो या रट लो. ये रटा जाता है कि 10% पर 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 33.1 ऐसे करके. तो 1 लाख में 33.1 वैल्यू तुम्हें दिखनी चाहिए. 33.1 यहाँ दिख रही है और कहीं नहीं. चलो ठीक है, 1 लाख का 1 लाख और 33.1 थाउजेंड तुम्हारा वो इंटरेस्ट. अब वो कह रहा है पीटी 12 है, पी भी पूरा का पूरा 24 है, ए भी पता करना है. मान लो अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? 24 - x होगा. इसका फॉर्मूला क्या होता है? 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 - x इंटू का 24. 12 एक बार कैसे काट देगा? इधर पे एक 12 बचा है, 2 इसे 6 बार पे काटेगा, एक्स इधर आएगा, 18 बचेगा एक्स. एक मिनट, वैल्यू कौन सी पूछी थी इसने? ए बी की वैल्यू पूछी थी. ठीक है, एक्स ही माना था हमने उसे. ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, इसको फिलहाल के लिए छोड़ेंगे. व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकाउंट ऑन अ सम ऑफ एट द रेट ऑफ 5%. 2 ईयर्स के लिए 5% का बनता है 10.25. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है ना. 4 जीरो इधर, ये है 64,000. 3 0 कटे. ठीक है, 5 से 2 100 5 बार पे, 5 से 2 बार पे, 2 से 32 बार पे. ठीक है, 2 इसका मल्टीप्लाई करेगा 410, 3 करेगा तो 15 और 6 मतलब 6 5 6 0 इधर रहा. The height of a solid right cylinder is 15. ठीक है, हाइट है 15. If 4 times its curved surface area, 4 times its curved surface area is equals to 6 times the area of its bases. Sum of the, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बेस होता है ना. देन इट्स वॉल्यूम इज, पहली बात तो 2 कटा आर भी कटा, एक 2 कटा पाई कटा और एक आर कटा, एक आर बचा. तो एच क्या आ रहा है? 6r/4, मतलब कि 3/2 आर. ठीक है, ये एच है. देन इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है, एक सेकेंड, एच तो 15 ही था ना, 3 ने इसको 5 बार काटा, आर आ गया तुम्हारा 10. ठीक है, अब पता चल जाएगा वॉल्यूम. पहले तो पाई की कोई वैल्यू है नहीं, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है 1500. आंसर सीधा.
The total distance in a journey 750 किलोमीटर the a bus travels the first 200 at a speed of इतना पहली बार उस एवरेज स्पीड निकालने को बोल रहा है जो कैसे निकलेगी 200/40 टाइम चाहिए नीचे 5 फिर find the speed of the bus for the next 550 किलोमीटर सच दैट दी अच्छा एवरेज स्पीड दी है पहली बार तो इनकी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो जो 550 पे जो इन्हें टाइम लगा है वो पूछ रहा है फाइंड दी सॉरी स्पीड लगेगी ना यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा सॉरी स्पीड होगा पूरा टाइम ओके इधर से 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ एक और यहाँ 110 ये जो 5 है तो इसने 5 को काटा सॉरी 75 को काटा 150 बार पे इसने इसी को काट दिया 3 बार पे तो ये पूरा इधर 1 प्लस में 110 अपॉन में स्पीड इक्वल टू 3 एक माइनस ये दोनों ने इसको 55 बार काटा है एस की वैल्यू आई 55 ठीक है तो जो नेक्स्ट 550 चलने थे उस पे उसकी स्पीड होगी 55 एलसीएम लेना है देखो जब भी एलसीएम लेने को बोलेगा तो तुम ऊपर वाले का एलसीएम लोगे नीचे वाले का एचसीएफ और अगर एचसीएफ लेने को बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम अब एलसीएम बोला है तो इनका एलसीएम तो ऊपर 10 ही है नीचे एचसीएफ क्या है पहली बात तो 8 और 3 है 2 से 5 बार 2 से 4 बार 5/12 है क्या सही बोल रहा हूँ या गलत हो गया कुछ क्या यार यही तो होता था ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ और क्या कर सकते हैं 6 8 8 और 3 24 मतलब यहाँ पे 6 का यहाँ पे 4 का यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो ये 12 ये 20 ये 30 है इसका एलसीएम क्या होगा 30 है 6 × 5 यह है 4 × 5 मतलब 2 का और मल्टीप्लाई यह है 4 × 3 4 × 3 मतलब 12 और ये 6 दोबारा है तो ये क्या है इतना है नीचे 4 × 6 × 8 आएगा क्या 6 ने 6 को काटा 2 6 ने 6 को काटा 2 में इसको 2 बार काटा 5/16 छोड़ो भाई बहुत इजी क्वेश्चन था ये दिमाग में नहीं आ रहा अभी व्हाट इज द इंटरनल एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर फॉर डे 5 है सॉलिड की वाली ये है देखो पहली बात तो ये 100% है 100% की वैल्यू है 360 डिग्री ठीक है इसका डिवाइड बाई 4 कर दो बस तो हो गया 25% की वैल्यू 90 डिग्री इन अ ट्राइंगल एबीसी जी इज सेंट्रोइड एंड एडी इज द मीडियन एबीसी ट्राइंगल है जी इज द सेंट्रोइड एबीसी एडी इज द मीडियन विद लेंथ ऑफ 9 ठीक है मीडियन है मान लेना ये मीडियन है 9 है मतलब इसकी सॉरी लेंथ 9 है देन द लेंथ ऑफ एजी ये होता है 2:1 के में तो टोटल है 3 तो 3 से 3 बार गया तो 2 × 3 6 ठीक है एजी की वैल्यू द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर पहली बात तो ये 75 दिख रहा है इसमें तो 25 से ये कितनी बार जा रहा है 25 से 7 बार पे 175 175 12 बचा 5 तो है ही 25 से 7 बार पे इंटू 5 बार पे ये क्या होता है ये भी होता है 25 × 3 तो एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर तो हो ही रहा है उसमें अब बोट कवर्स इतने किलोमीटर इतने मीटर इन अपस्ट्रीम इन इतने मिनट एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन इतने मिनट ठीक है स्ट्रीम इन इतने मिनट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन इतने मिनट फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द हम्म ठीक है तो डिस्टेंस तो वो है ही इस सॉरी टाइम क्या है 30 मिनट है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में है ये स्पीड का वो क्या हो जाएगा 6 से काटा 3 और 5 बार ठीक है लेकिन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की नहीं ये पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ वाटर और बोट और स्ट्रीम की ठीक है बोट की क्या होती है दिस प्लस दिस बाय 2
और स्ट्रीम की क्या होगी, दिस माइनस दिस बाई टू, 2 से 2 काटो, 4:1। ठीक। 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 hours, and an outlet pipe can empty 44 gallons of water per hour. अच्छा, इसकी एफिशिएंसी दे दी सीधी। ऑल थ्री पाइप्स टुगेदर कैन फिल द सेम। ठीक है, इसको कैसे करो कि ए भर रहा है 20 में, बी भर रहा है 24 में, सी भर रहा है, ऑल थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द सेम। ठीक है, ये 40 में, इनका एलसीएम क्या होगा, 40 है 8 × 5, 24 क्या है 8 × 3, 20 क्या है 4 × 5। ठीक है, ये बन गया 40 × 3 120। ये 6 ये 5 ये 3। ठीक है, ये 6 है ये 5 है ये 3। अरे, ये तीनों काम कर रहे थे तब। और इधर पे सी जो है आउटलेट है। 6 प्लस ए प्लस बी तो 11 है। 11 प्लस सी प्लस 3 मतलब सी क्या है, 11 माइनस का 3 मतलब -8। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। जो सी है उसको क्या दिया है कि जो 8 की यूनिट है वो दिया 44 गैलन्स पर आवर में। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इतना यूनिट पर आवर में। तो क्या 44/8 मतलब कि 4 से डिवाइड किया तो 11/2 आया। इसका मल्टीप्लाई क्या 120 से करें क्या, 2 से ये 60 66। ठीक है, सही है। कुछ नहीं है, बस एफिशिएंसी को इक्वेट कर दिया था। आरसी में कुछ और बचा है क्या। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस सच दैट 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 15। देखो 15 है तो इसका मतलब 5 है और 3 है, 5 है और 3 है, इसका मतलब बी जो है वो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। अब दूसरी चीज, 3 से भी होगा तो 5 4 3 हो गया, 3 तो 3 है ही, 6 भी 3 का ही डिजिट है। तो 2 प्लस ए प्लस बी जो है ये पूरा 3 से जाना चाहिए। जब इधर पे बी को मैंने 0 रखा तो 2 प्लस ए, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी चाहिए मुझे, जब बी ही 0 है तो ए को कम से कम 7 रखूंगा, तभी ये 3 से जा पाएगा ना। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर मैं बी को ही 5 रख दूं तो 2 प्लस ए प्लस 5 मतलब कि ये हो गया 7 प्लस का ए। तो एक ही जगह में ऐसा क्या रख दूं, एक तो मैं देखो 2 रख सकता हूँ। ठीक है, हाँ तो यही चीज थी। 2 3 5 3 8 में 3 तो नहीं जोड़ेंगे, तो एक ही जगह में अगर यहाँ पे 8 रख दूं तो 8 और 7 15 हो जाएगा, तब भी कुछ आ रहा है। तो ए की वैल्यू 8 और बी की 5, 8 5 13। ठीक, 15th क्वेश्चन है। और एक है 20 क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा था एलसीएम, यही तो होता है एलसीएम की, फ्रैक्शंस का एलसीएम होता है। सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। और 1/2, 5/6, 5/4। ऊपर वाले का एलसीएम यही है, नीचे का एचसीएफ 2 है, 5/2। अरे अब याद आ गया, वो ये चीज थी कि जब भी आपको ये ऐसे करने को बोले एलसीएम या एचसीएफ बोल दे फ्रैक्शंस का, तो उसमें क्या देखना होता है कि जो भी ये फ्रैक्शंस हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तभी तो वो फ्रैक्शन होंगे, वरना फ्रैक्शन थोड़ी कोई वो होता है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे तभी वो क्वेश्चन दे दिए थे, वरना तो बहुत ईजी है वो क्वेश्चन। यही चीज की मिस्टेक कराता है बस। रुको, वेस्ट बंगाल के फ्रेंच वाले, जर्मन वाले, डच वाले बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, if the number of Dutch speaking people is increased, ठीक, if the number of speaking people is increased by 25% in West Bengal, वेस्ट बंगाल में डच वाले कितने हैं, इतने हैं, इसका 4, 3 से 12, 6 बार एक बार, अगर इतना जोड़ दिया जाए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। एंड द नंबर ऑफ जर्मन जर्मन स्पीकिंग पीपल इन महाराष्ट्र, जर्मन महाराष्ट्र ये है जो, इसको 20% से इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, इसका 20% मतलब 5 से डिवाइड किया तो 3 बार 15, ये 4 और एक, इसमें अगर 341 जोड़ दिया जाए, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर बिटवीन डच पीपल स्पीकिंग इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये देखो यार, ये सब 14 और 3 कम से कम 1700 हो रहा है, और ये अकेले 1700 है।
तो 1700 में से पहले ये माइनस कर दो। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 14 गया तो 2। ठीक है, अब 341 में से इतना माइनस किया तो -20 आ रहा है। इसका मतलब 241 का जो है डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, 241 का पूरा जोड़ जोड़ के वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स में तो हो गया यार, पूरी मैथ्स हो गई आज। फिर भी 4 मिनट बचे हैं। और यही होता है, 28 से स्टार्ट की थी, मतलब कि 24 मिनट में कर ली पूरी मैथ्स। टाइम बच जाना चाहिए, पर खैर इस मॉक को मैं बिल्कुल रेलिवेंट करूंगा। पर ये जो इंग्लिश दी थी, पर इंग्लिश में ये जो ये दे दिया था, ये इजी था। ठीक है, आज की इंग्लिश बोल सकते हैं इजी है। जीएस तो काफी ज्यादा कठिन थी, जितनी ज्यादा अभी एग्जाम में पूछ रहे हैं फिलहाल। लेकिन इंग्लिश थोड़ी इजी दे दी, इतनी इजी इंग्लिश में आ रही है एग्जाम में, लेंदी आ रही है। 10th क्वेश्चन में क्या दिमाग लगा सकते हैं? 7 का क्यूब होता है 343, उसमें कुछ मेहनत करना पड़ता है। 23 का ये तो क्यूब है ही नहीं। 48 का ये क्यूब है नहीं। तो 48 का स्क्वायर है, 50 का 25 आना चाहिए था, नहीं है। 7 से मान लो डिवाइड मल्टीप्लाई करें, चलो। 7 से मल्टीप्लाई किया 4 बार, 48, सॉरी 28 बचा 4, इंटू किया 5, 35 प्लस कर दिया 40, 41 बन गया। 23 में इंटू 2 किया 46, 4 8, 53, तो 3 टाइम्स 69, 69 से 83 बचे रहा 14। 48 में एक का मल्टीप्लाई 48 ही। 8 में और जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, ये 5। क्या ये 3 प्लस ये सब, इनका यूनिट सम नहीं है ऐसा कुछ। इनका जो डिजिट सम है वो क्या है? 6 है। क्या पता उसमें +1 कर दिया हो इनका। पर ये इधर तो ऐसा है नहीं। 9 3 12, ये क्या है? 12 6 18, ये क्या है? 16 और 8 24। 18 में 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 54 +6। क्या इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं? दिस माइनस दिस, या दिस प्लस दिस। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 23 + 9 को 32 बन रहा है। इन दोनों को जोड़ दो अगर तो 20 + 6 26 बन रहा है। कर ही नहीं रहा है क्लिक तो। देखो यार, 3 के मल्टीपल एक तो ये है और एक ये है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। 39 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 21। हाँ, 48 में कितना जोड़ना? 21। अच्छा, ये बनती है एक चीज। क्या मैं इसमें 21 जोड़ने से ये बन रहा है? क्या इसमें 21 जोड़ने से ये बन रहा है? क्या इसमें 21 जोड़ने से ये बन रहा है? हाँ, तो इसमें या इसमें हो सकता है। 18 में क्या? 18 में क्या जोड़ दो? 21। ठीक है, इसमें 21 जोड़ा, ये बना। इसमें 21 जोड़ने से ये नहीं बन रहा। ठीक है, A + 21 था B + 21 था C। इजी क्वेश्चन था यार। यूनिट डिजिट पे भी ध्यान देते तो हो जाता वो क्वेश्चन काफी अच्छे से। ठीक है, फिलहाल टेस्ट तो हो गया है।
137 मार्क्स तो यार कम है जिस हिसाब का पेपर था। चलो कोई नहीं, कहीं ना कोई कुछ गलती हो गई होगी, मैथ्स रीजनिंग या इंग्लिश में, देखेंगे बाद में। ठीक है, आज अटेम्प्ट भी थोड़े ठीक थे। सही है ये मॉक, अगर इंग्लिश को भी लोग थोड़ा टफ बना देते तो मतलब तो 127 आ जाते, है ना। और यही अभी एग्जाम में आ रहा है, जैसी मैथ्स रीजनिंग थी ऐसी ही सॉर्ट ऑफ आ रही है। अगर इसको थोड़ा, मैं कह रहा हूँ, सब बहुत ही कठिन कर देते तब भी 17 मार्क्स भी कठिन अगर कर देते ये लोग इंग्लिश को, है ना। 17 अगर कम भी आते तब भी 120 था, वो सही था इस मॉक के हिसाब से, क्योंकि रेलेवेंट मॉक था, बस इंग्लिश थोड़ी सी इजी साइड पे थी, बाकी सब ठीक था। तो जो भी आपके कमेंट, जो भी आपका स्कोर आया वो उसे कमेंट करना। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग जो देखते हैं वीडियोस वो सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं, प्लीज ऐसा नहीं किया करो। थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलती है हर दिन वीडियो डालने की, एग्जाम पास में, लेकिन मैं वीडियो डालता हूँ जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को हेल्प मिलती है, मुझे उससे अच्छा लगता है और मेरी भी प्रैक्टिस होती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।